Okay, so very good afternoon, everyone. Till the last class, if we revise, then we have learned about the question answer of our previous class, chapter, which is related to our government. So quickly, first of all, we would like to go through and ask if anyone having any doubts. अगर किसी को कुछ डाउट्स है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और एनीथिंग, सो क्विकली आस्क, जल्दी से पूछें, so that we can discuss about those all question answer or anything, if any topics, any word problems, word meaning or whatever you have doubts in from previous chapter. Most important thing, so you can ask. So quickly I am giving some time, and if you don't have any doubts you can type you don't have any doubts and you have done all the question answer and you have understood also properly the topic. So yes or no, two things you can type. So quickly everyone, it should not take so much time so that we can start our further chapter, next chapter. Ankush, Ayushi, Yuvraj, Isa Kumari. Okay, Ayushi has done all questions, very good. Yuvraj have doubts in MCQ number 1. So MCQ number 1, let us see first. So MCQ question number 1 which we have is, there are dash members in Rajya Sabha currently. तो राज्य सभा में हमारे कितना मेंबर्स है अभी, ये बताना है. टेल मी एवरीवन, whoever done, how many members are there in राज्य सभा. राज्य सभा में कितने मेंबर्स होता है, that is the questions. 250. Dhananjay, Isa, yes, exactly, correct answer. So 250 members are there in Rajya Sabha. Okay, Yuvraj. So total 250 members are there in राज्य सभा. तो राज्य सभा का जो सीट्स होते हैं उसमें 250 मेंबर्स का ये रहता है, ठीक है. तो स्पेशली जो एमएलएज वगैरह होते हैं वो उसमें उनको ये बनाया जाता है, मिनिस्टर्स बनाया जाता है, ठीक है, और उस तरह से होता है. तो 250 मेंबर्स आर देयर. ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन, कोई और, किसी को और कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो या टॉपिक्स में डाउट्स हो. ईसा ने भी कर लिया है, धनंजय कर लिया है, विद्या कर ली है, वेरी गुड. ओके ओके ओके, वेरी नाइस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच वी हैव. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why very important, you know, because no, not only this chapter, all the chapters, all the topics, not only in EVS, in mathematics also, in other subjects also, in English, Hindi, all the things are very important. But thing is, you need to understand why important, why these things are there. So first, most important thing is you need to ask some questions to yourself. Ki, why this, why not this, how and when, these all things, this type of questions, whenever, until and unless you arise, then till then you will not able to understand. तो आपको एक अपने आप में क्वेश्चंस डेवलप करना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने का आदत डालना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ इंटरेस्टिंग सीख सकते हो. ओके, सो दिस चैप्टर बिगिंस विथ व्हाई द एजुकेशन इज. एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, हम लोग आज जो पढ़ाई कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, हो सकता है सम ऑफ यू आर अवेयर अबाउट एंड नॉट सम ऑफ यू, ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर अबाउट, बिकॉज उसके अलावा आप लोग तो पढ़ाई करते नहीं अगर किसी को नहीं पता होता. तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक एक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि व्हाई द स्टडी और व्हाई द एजुकेशन इज important. So first topic which we have in the next chapter, that is specially the chapter name is our rights and duties. तो हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे राइट्स और ड्यूटीज है. कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो रहते हैं, उनको अपना राइट्स पता नहीं होने की वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं. दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सम ऑफ द बेनिफिट्स, सम ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल्स. So that is why they are behind. इसीलिए वो कुछ लोग जो उतना एजुकेटेड नहीं होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो अपना बात नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कुछ राइट्स जो होता है उनका अधिकार क्या क्या होता है. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 16
विच इज आवर राइट्स और तो हम लोग जब तक हमारा राइट्स नहीं जानेंगे तब तक हम लोग अपना राइट्स के लिए फाइट्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल्स, क्या हम लोग का अधिकार है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड ड्यूटीज भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका राइट्स ही है, राइट्स के अलावा कुछ कुछ ड्यूटीज भी आपका है, तो वो आपको फॉलो करते हुए जाना है। सो आवर राइट्स एंड ड्यूटीज वी विल डिस्कस अबाउट and duties. So the chapter is begin with the constitutions of India. First, before going to the constitutions of India, I ask one question, that is why the education is important. So we'll discuss about that, and then we will discuss about the constitution in India, then we will discuss about the fundamental rights of the peoples, and then we will discuss about the fundamental duties. So 2-3 topics are there only. First, just fundamental rights, fundamental duties, and the constitutions of India. Constitutions का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। उससे पहले हम लोग constitutions समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि every citizen has the rights to education. Most important thing is to right to education. ठीक है, right to education का मतलब क्या होता है कि आप लोग का, हमारा सीखने का अधिकार है, ठीक है। कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो ये आपका आजादी है, आप सीख सकते हो, ठीक है। स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं, कुछ पेरेंट्स नॉर्मली होते हैं जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ऑल, बिकॉज आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, लेकिन कुछ उस तरह से लोग, गरीब घर के लोग होते हैं जो पढ़ाने नहीं पाते हैं इस तरह से स्कूल्स में, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वो पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका घर का कंडीशंस उस तरह से नहीं होता है कि वो स्कूल भेज पाए। तो चाइल्ड लेबर करते हैं, बच्चे बहुत जल्दी ही काम में चल जाते हैं, बच्चे का बहुत जल्दी, स्पेशली गर्ल्स का शादी करा दिया जाता है, ठीक है। पहले के जमाने में और ये ज्यादा होता था, अभी तो बहुत कम हो गया है क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग जो है एजुकेशन में हम लोग का इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द राइट टू एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन हम लोग का अगर सुधर जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अभी हम लोग अगर पूछते हैं कि आदमी को व्हाट आर द 3 एसेंशियल थिंग्स विदाउट विच द पीपल्स कैन नॉट लीव, देन वी से दैट फूड, क्लॉथ्स एंड होम, राइट। हम लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, एक कहावत हुआ करता था, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो चीजें आता है वो आता है हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो भी हम लोग अपना बेटर लाइफ नहीं ये कर पाएंगे, स्पेंड कर पाएंगे, या हम लोग का अपना अच्छा लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हर जगह पे आप देखोगे, जब whenever you are talking with anyone, आप किसी से अगर बात भी करोगे ना, then you will able to understand कि this particular people जो जिससे आप अगले से बात कर रहे हो, how much educated that person is। तो बात करने का तरीका जो होता है उससे, या बात करने का टोन से, या उनका बातचीत से भी आप इवन पता हो जाता है कि ये किस तरह से एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। तो आप ये समझ सकते हो कि एजुकेशन में हम लोग का कितना फायदा हो रहा है, हम लोग का बात करने का तरीका भी बदल दे रहा है, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ में क्या होता है, नॉर्मली जो उतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको डाइट के बारे में नहीं पता होता है, तो वो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। वो कुछ भी सुबह खा लेते हैं, शाम में सेम चीज खा लेते हैं, ठीक है। दोपहर में एक बार खाते हैं, नहीं खाते हैं, या 2 बार खा लेते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम, या तो एक ही बार में दोपहर में खाते हैं, रात में खा लेते हैं। तो उस तरह से वो अपना बैलेंस डाइट बिल्कुल मेंटेन नहीं करता है। लेकिन जो एक अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जैसे आप लोग ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बाहर का चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, या किस तरह का चीजें, फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए, या किस तरह से चीजें खाना चाहिए। लेकिन जो उस तरह से रहेंगे, अनअवेयर रहेंगे, वो कुछ भी खा लेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि अगर हम लोग बाइक जो चलाते हैं उसमें पेट्रोल ना डाल के उसमें कैरोसिन डाल दें या पानी डाल दें, तो इट विल नॉट रन प्रॉपर्ली। तो हम लोग का बॉडी भी उसी तरह से है, एक बैलेंस डाइट पे फंक्शन करता है। सो अगर हम लोग उस तरह का बैलेंस डाइट हम लोग नहीं लेंगे
तो नहीं हम लोग फिजिकली, हम लोग मेंटली भी प्रिपेयर नहीं रहेंगे, हम लोग का कोई चीज याददाश्त जो होता है वो भी डेवलप नहीं करेगा, वो भी ग्रो नहीं करेगा, कोई चीज हम लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे और नहीं हम लोग ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे, नहीं हम लोग ज्यादा देर तक कुछ पर्टिकुलर काम को कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा एजुकेशन जो होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी मैंने तो काफी चीज डिस्कस कर लिया, अभी आप बताइए, यू ऑल जस्ट टेल मी सम थिंग्स कि व्हाट डू यू थिंक द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन। सो आप लोग अभी एक एक करके बताइए कि एजुकेशन का बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। बताना नहीं है, आपको मैसेज में लिखना है, यू कैन राइट इन मैसेज इन आवर ग्रुप। सो एक एक करके पॉइंट्स अभी बताएंगे, आई विल राइट हियर योर पॉइंट्स ओनली, और बाकी हम भी कुछ कुछ ऐड कर देंगे और करते जाएंगे। अभी सबसे पहले लेट अस सी हु कैन टेल। धनंजय हैव डाउट्स 250, ओके। सो धनंजय कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पूछ रहा है, ओके। द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉज और रूल। जो कॉन्स्टिट्यूशंस का मीनिंग होता है, एक नियम बनाया जाता है, एक कुछ नियम बना के उसको लिखित रूप से रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। सो द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट, the meaning of constitution is the basic laws, the basic laws or rule, basic laws or rules of a country, of a, it may be country or it may be some institutions also, okay, so that is called the constitution. In Hindi it is called संविधान, हिंदी में इसको संविधान बोला जाता है। so, हिंदी में हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हो, so, इंग्लिश में नहीं लिखते हैं नॉर्मली हम लोग। so the basic laws or rules of a country which is called संविधान in English, so that is constitution. so quickly tell me everyone the benefits of education 101, कुछ points बताइए। So I can see some of the students has written lots of benefits. Vidya Vani, okay. Improving economy. So first point Vidya has written is improving economy. Yes. Economy क्या होता है? Economy means होता है money, right? तो अगर हम लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं रहेंगे, then we will not able to earn money. हम लोग पैसा कमा नहीं पाएंगे, ठीक है। So first most important thing is to improving economy. अगर हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं, राइट। तो जैसे जैसे ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, जितना खर्चा करेंगे इकोनॉमी हम लोग का ये इंप्रूव होगा, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंप्रूविंग इकोनॉमी, ओके, 1 पॉइंट। So first point with the written is improving economy. Then providing a precious and happy life. Yes. So जैसे हम लोग का improve होगा इकोनॉमी तो डेफिनेटली हम लोग के पास ज्यादा पैसा होगा तो अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे से लाइफ हम लोग का बीत सकता है, तो डेफिनेटली लाइफ का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा। तो दैट इज वी कैन स्पेंड आवर हैप्पी लाइफ, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स वी कैन राइट फॉर इम्प्रूविंग आवर लाइफ स्टाइल। तो हैप्पी लाइफ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्रूविंग और इम्प्रूव लाइफ स्टाइल। इसको शॉर्ट में हम लोग अपनी लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं। और गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी मीन्स व्हाट यू नो, कि आप आज का डेट में जो भी पढ़ाई कर रहे हो कल का डेट में कोई और को भी पढ़ा सकते हो, राइट।
आज 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 आप आज का डेट में जो भी सीख रहे हो, इट मे बी एनी स्किल्स, इट मे बी एनी थिंग्स, वट एवर यू आर अर्निंग, सो दैट यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमको मतलब हमेशा लेने का ये सोच रहे कि every time what I will get, so something you need to think what I can give also to the society। तो आप लोग में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कभी कभी आपके घर में या आस पड़ोस में जो भी बच्चे होते हैं उसको गाइड करते होंगे, ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो समझा देते होंगे। सो दैट इज स्मॉल व्हाट कंट्रीब्यूशंस यू कैन गिव टू द कम्युनिटी। तो आज के डेट में जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, अभी हमारे यहाँ पे जो है सबसे रिचेस्ट मैन इंडिया का जो है, आप इनका ले लीजिए, जो अंबानी है वो काफी चीज डोनेट करते हैं, टाटा ले लीजिए वो भी काफी चीज पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं सोशल वर्क में। सोशल वर्क में मतलब क्या चीज में होता है, जैसे गरीब का पढ़ने में हो गया, गरीब का हेल्थ में हो गया, ठीक है। अभी जैसे कोविड का सिचुएशन था, इसमें भी काफी डोनेशंस दिया है इन्होंने, ठीक है। जो भी स्टार्स होते हैं बड़े बड़े जो अर्न करते हैं ज्यादा, वो अपना कंट्रीब्यूशंस का कुछ पार्ट देते हैं, और भी नॉर्मल आदमी भी काफी कंट्रीब्यूट अभी किए हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग में भी से भी कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब मंदिर वगैरह जाते हैं वहां पे बहुत सारे उस तरह से गरीब लोग रहते हैं, तो आप लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे दान देते हैं, ठीक है, वहां पे वो लोग को पैसा देते हैं। तो वो दीज ऑल द स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशंस व्हाट यू कैन डू इज द मोस्ट थिंग, ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा रिसेंटली बाबा का ढाबा बहुत फेमस चला है, अभी वो फिर आ गया, फेमस होने के बाद बीच में फिर वो झूठा इंजाम लगा दिया। तो वो क्या थे, पहले कितना गरीब थे, पहले उनके पास कोई खाने नहीं जाते थे, लेकिन अब एक सोशल एक्टिविटी होने के बाद फिर इतना कंट्रीब्यूशन हो गया उनके पास कि उनका बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया, ठीक है, तो लाखों में उनके पास पैसा आने लग गया। तो उस तरह से आप सोसाइटी को क्या बैक दे सकते हो, इट इज नॉट लाइक ओनली टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। हम लोग का सोसाइटी में और भी बहुत अगल बगल में भी बहुत सारे बाबा का ढाबा या बहुत सारे इस तरह से गरीब लोग हैं या इस तरह से नीडी पीपल्स है। इट इज नॉट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी ओनली, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली ही आप हेल्प कर सकते हो, किसी को हेल्प आप बहुत तरह से कर सकते हो। रोड क्रॉस करने में किसी को हेल्प करना हो जाता है, या मेंटली कभी कोई डिस्टर्ब रहते हैं उनको हेल्प करना, गाइड करना हो जाता है। तो there are several way to help the peoples that you can do if you are a well educated persons। आप अगर अच्छा शिक्षित आदमी होंगे तो आप गिविंग बैक कर सकते हैं, सोसाइटी को कुछ देने का सोच सकते हैं, ठीक है। So this is one of the most important thing। See, whenever we are talking about the education ना, there are two types of activities there। दो तरह से ग्रोथ होता है, एक तो पर्सनल ग्रोथ होता है, थ्रू द एजुकेशन आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अपना इंप्रूवमेंट में क्या आता है, जैसे कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपना पैसा इकोनॉमिकली अपना स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये सारे जो आता है ये हमारा पर्सनल में आता है, और एक सोशल में भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। वी कैन इंप्रूव अवर सोसाइटी ऑल्सो। तो सोसाइटी में जो इंप्रूव करते हैं दैट इज कम्स अंडर दिस ऑल थिंग्स, सोशल वर्क। जो भी सोशल वर्क होता है दैट वी कैन इंप्रूव थ्रू द एजुकेशन। तो इस तरह से काफी सारा पॉइंटर्स है जो कि आप देख सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी लिखा है। सो आई एम नॉट गोना टू राइट दिस फर्दर। बाकी आप लोग खुद से कुछ कुछ चीज जो है सोच के लिखने का चीज है, ये आपको खुद से लिखना है। तो जो भी पॉइंटर्स आपको याद आता है ये आप खुद से लिखोगे। इसमें स्पेस जो आपके बुक में दिए हुए हैं उसमें 4 से 5 पॉइंटर्स आप अगर लिखते हो इट्स एनफ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग सिलेक्ट करके इस तरह से अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करोगे, ठीक है। इट शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम समवेयर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज व्हाई द एजुकेशन इज ओके। आफ्टर देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो वी हैव डिस्कस द टर्म कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारा चीज इस तरह से मेंशन है कि एक आदमी अगर है इंडिया में, अगर रह रहे हैं इंडिया में, अगर ग्रोन हो रहे हैं, इंडिया के हैं, तो उसको ये सारे लॉज जो है, ये सारे रूल्स जो है, ये सारे राइट्स जो है उनको मिलेगा। और ये राइट्स मिलने के साथ साथ उनको ये सारे उनका ड्यूटीज भी है। जैसे आपका ड्यूटी है क्या और राइट्स है क्या, हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
वो हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये है क्या और किसने ये बनाया, ठीक है। तो ये जो है ये एक कमिटी के द्वारा, जिसको ड्राफ्टिंग कमिटी बोला जाता है, जो कमिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लीड किया गया था और उनके द्वारा समय ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है, जो कि 26 जनवरी 1950 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसी टाइम से हम लोग जो है 26 जनवरी से ही तब से हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले 15 नवंबर 1947 में भारत जो है वो आजाद तो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नियम कानून नहीं था कि कैसे हमारा कंट्री रन करेगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होते हैं बच्चे का, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे। तो कोई हमने देखा है रिपब्लिक डे में इंडिपेंडेंस डे का विश भेज देते हैं और इंडिपेंडेंस डे में रिपब्लिक डे का विश भेज देते हैं। तो ये नॉर्मली होता क्या है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तब तुरंत हमारा जो है ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना था, ऐसा कोई भी राइट्स और ऐसा कोई भी नियम नहीं बना था। तो वो कब बना हमारा 1947 के बाद 3 साल बाद 1950 में बना, और 26 जनवरी 1950 में ये हम लोग का लागू हो गया, ठीक है। तो तब से ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इस पर्टिकुलर दिन को याद रख के, और हम लोग इसकी मेमोरी में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का इंडिया का बना था रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस पहले ही हो गया था 1947 में ही, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट है हमारा? 6 है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हम लोग का 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। These rights cannot be denied to anyone by laws। तो अगर देखिए नॉर्मली राइट्स तो बन जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको राइट्स के बारे में पता नहीं होने के कारण या जानबूझकर भी कोई जो होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा है कि ट्रैफिक रूल्स तो बना हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो रॉन्ग साइड में भी चल जाते हैं, या जिसके कारण से बाई चांस कभी एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है कि एक पर्टिकुलर आदमी को कानून के हिसाब से इसको फॉलो करना चाहिए, और ये डिनाई नहीं कर सकते, इससे मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो द राइट्स टू इक्वलिटी, पहला जो राइट्स है दैट इज राइट टू इक्वलिटी। सो फ्रॉम द टर्म इक्वलिटी आप समझ सकते हो, इक्वलिटी से ही आप समझ सकते हो कि क्या इसमें से बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है, और जो सबसे ज्यादा इसको आज का सोसाइटी में देखा जाता है, आप देखोगे नॉर्मली आज भी ये राइट टू इक्वलिटी को बहुत कम मतलब लोग जो एजुकेटेड लोग होता है वही इसको फॉलो करते हैं। नहीं तो आप कहीं भी जाओ, मंदिर वगैरह में जाओ, किसी घर में जाओ, ये जात पात का जो चीज है वो अभी भी लागू है, अभी भी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन एज पर द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ के हिसाब से आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये आदमी जो है ये एससी है, ये एसटी है, ये जनरल है, या ये लोअर कास्ट का है, ये अपर कास्ट, हम लोग अपर कास्ट का है, ये आप लोग नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द राइट टू इक्वलिटी सेज कि सबका अधिकार जो है, एवरीवन हैव द इक्वल राइट्स। जो भी पीपल्स है इंडिया में वो सबका जो राइट्स है वो सेम है, दैट इज कॉल्ड राइट्स ऑफ इक्वलिटी, ओके। यहाँ पे कोई भी कास्ट से आप ये नहीं कर सकते हो कि वो दूसरा कास्ट का है, हम दूसरे कास्ट के हैं। कोई भी रिलीजन नहीं कर सकते हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जो कि चलता है, जो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं। जो एजुकेटेड पीपल होता है वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, वो उसका घर हम नहीं जाएंगे, उसको हम टच नहीं करेंगे, उसका घर में पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो ये अभी भी होता है सोसाइटी में, जो कि नहीं होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से ये गलत है, ठीक है। तो हमारा अधिकार है
ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का सब समान है। और नहीं आप जेंडर बेसिस पे कि ये लड़की है हम लड़के हैं, अभी आज का डेट में भी आप लोग देखोगे नॉर्मली लड़की लोग को उतना फ्रीडम नहीं है कि आप कहीं भी लड़के लोग जैसे घूमने जा सकते हो या फ्रीडम उस तरह से एजुकेशन उतना अपर क्लासेस तक पढ़ाई कर, अभी भी रूरल लोकेशंस में है कि बच्चे को जो है ज्यादा बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता है एज लाइक द बॉयज, जैसे लड़कों को दिया जाता है, जो कि गलत है। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू इक्वलिटी एक्ट के हिसाब से आपका अधिकार है कि आप अगर गर्ल्स हो या बॉयज हो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो ये हो गया। और बर्थ और प्लेस के हिसाब से भी नहीं कि नहीं इनका हम बिहारी है, हम झारखंडी है, हम यूपीस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये होता है, हम देखे हैं कि नहीं हम यहाँ के हैं वहां के हैं, ये राइट टू एजुकेशन राइट टू इक्वलिटी एक्ट के विरुद्ध है, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह से करता है तो एज पर एक्ट वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट टू इक्वलिटी का बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट राइट्स हमारा दूसरा राइट्स जो है दैट इज राइट टू फ्रीडम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो मन कर रहा है वही करोगे। फ्रीडम मतलब तो वही होता है ना कि आपका आजादी है कुछ भी करने का, ठीक है। तो डोंट थिंक कि राइट टू फ्रीडम मतलब आप आजाद हो कुछ भी करोगे, ठीक है। सो राइट टू फ्रीडम। सो राइट टू फ्रीडम मतलब क्या होता है, इसमें कुछ कुछ राइट्स है जो आप जिसके लिए आप आजाद हो, मतलब उसके लिए आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल आजादी है। आजादी फ्रीडम मतलब वही होता है। तो इसके मतलब फर्स्ट फ्रीडम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको ये अधिकार है कि कोई अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है या कुछ आप अपना राय रखना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, ये बोलने का मतलब राइट टू स्पीच जिसको बोला जाता है, ये पहला है राइट टू फ्रीडम में सबसे पहला फ्रीडम है आप कहीं भी कुछ अगर अपना राय सुझाव या कुछ बोलना चाहते हो ये बोल सकते हो। अगर कोई कुछ कर रहे हैं उनके विरुद्ध आप कुछ सवाल करना चाहते हो, इवन हमारे जो है सपोज कोई गवर्नमेंट या कहीं भी कुछ भी हो रहा है लीगल तरीके से भी आप उसमें सवाल कर सकते हो, ठीक है। लीगल तरीके से सवाल होता है कि कोर्ट में जाके आपको उसके लिख के भेजना पड़ता है कि आप जो है, या अभी तो ऑनलाइन भी हो गया है, ऑनलाइन भी आप सवाल कर सकते हो कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका हमें जवाब चाहिए, ठीक है। तो उसकी उनको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसका रिटर्न जवाब मतलब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तभी नहीं तो उनके अगेंस्ट पे कुछ फीस फाइन्स लग जाता है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम में सबसे पहला फ्रीडम यही है कि आपको राइट टू स्पीच है, आप कुछ भी कि सारे राइट्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी आज ऑलरेडी टाइम लिमिट पार हो गया, अभी एंड हो जाएगा नहीं तो कभी भी क्लास, तो इसलिए मैं बता दूं कि आज इतना ही हम लोग रखते हैं। बाकी का जो भी राइट्स है वो आप लोग एक बार गो थ्रू करेंगे और हम लोग हमारे जो नेक्स्ट क्लास है वो बाकी राइट्स हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज का होमवर्क मैं आप लोग का ये दे रहा हूं, एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना बाकी, और इसको फिलअप कर लेना कि व्हाई डू द व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। आप यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ भी लिख सकते हो या अपना कॉपी में जो होमवर्क कॉपी में है वहां भी लिख सकते हो। सो योर होमवर्क इज टू डू दिस वन, दिस फर्स्ट पेज, राइट in space provided, either you can write in space provided of your book or you can write in your copy, what do you think are the benefits of education। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, कुछ बेनिफिट्स लिखना है एजुकेशन का, हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, हम लोग ने बहुत सारा चीज डिस्कस किया। स्पेशली आप उस तरह से कैटेगराइज करके लिख सकते हो कि कुछ सोशल बेनिफिट्स होता है और कुछ पर्सनल बेनिफिट्स होता है। पर्सनल बेनिफिट्स में यही आता है, सोशल बेनिफिट्स में यही आता है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोग को इंक्लूड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली जो एजुकेटेड पीपल नहीं होते हैं वो उसका बैलेंस डाइट सही नहीं होता है, तो वो खाना पीना अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ पे असर पड़ता है, ठीक है। तो इफ वी बिकम एजुकेटेड देन वी कैन टेक केयर गुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। उसके बाद क्या होता है, जो अनएजुकेटेड होते हैं उसका जैसे चाइल्ड मैरिज वगैरह कर देते हैं, तो इस तरह से कुछ लॉज है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है, उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं हम लोग और उसको फॉलो करते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, चाइल्ड मैरिज की वजह से बाकी बच्चे का जो हेल्थ होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और जो चाइल्ड
इसका रेट एक होता है, बच्चे का जो है मृत्यु दर उसको बोला जाता है, ठीक है, डेथ रेट होता है। तो पहले का जमाने में डेथ रेट जो होता था बहुत हाई होता था, मतलब आदमी का शादी होने के बाद या तो लड़की का मौत हो जाता था या तो बच्चे का मौत हो जाता था। इस तरह से जो डेथ रेट होता था वो काफी ज्यादा होता था, क्योंकि बचपन मतलब बहुत कम एज में शादी कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसके वजह से नहीं सही से वो अपना घर संसार चला पाते थे, जो ये होते थे, जो ये बॉयज होते थे वो, या जो आदमी होते थे वो, और नहीं गर्ल्स का हेल्थ सही से अच्छा से रहता था, ठीक है। तो ये सारी चीज आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे, एजुकेशन का क्या बेनिफिट्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you everyone. Anyone else? If you have any doubts, we will discuss in our next class. Okay. Rest of all students has given lots of points. Very nice. बहुत सारा points सब लोग ने दिया है. Okay. तो ये सारे पॉइंट्स सब लोग लिख लेना एजुकेशन का बेनिफिट्स में, ठीक है। कॉपी में लिखना बेटर रहेगा, बिकॉज देयर इज वेरी लेस स्पेस इन द बुक में बहुत कम स्पेस है।